good and happy. So today we will begin with the lesson number 10 of your class 6 English, that is two birds. There once lived a bird and her newborn babies in a forest. एक बार एक bird रहती थी और उसके newborn babies रहते थे forest में. They had a nest in a tall shady tree. एक बहुत ज़्यादा shady tree में जो बहुत bushy tree था उनका एक nest था. And there the mother bird took care of her little ones day and night. वहाँ पे क्या करती थी mother bird अपने babies की take care करती थी day और night. One day there was a big storm. एक दिन बहुत big storm आ गया, आंधी आ गई. There was thunder था, बहुत ज़्यादा thunder था, lightning and rain. And the wind blew down many trees. Wind ने बहुत सारी trees को घेर दिया था. The tall tree in which the bird lived also came down. जो tall tree था जिसमें birds रहती थी वो भी नीचे आ गया था. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. जो big heavy branch थी उसने hit कर दिया nest को, birds को kill कर दिया. Kill the bird को kill कर दिया. Fortunately for the baby bird, the strong wind blew them away to the other side of the forest. जो बेबी बर्ड से क्या हुआ, फॉर्चुनेटली मतलब होपफुली मतलब अच्छे से क्या हुआ, जो बेबी बर्ड थे वो हवा से उड़ के दूसरे फॉरेस्ट में चले गए, अदर साइड फॉरेस्ट के दूसरे साइड में चले गए. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. एक आ गई केव के पास जहाँ पे कौन रहता था, रॉबर्स की गैंग रहती थी. So the other landed outside our Rishi's ashram a little distance away. और अदर वाली कहाँ पे गई, एक ऋषि के आश्रम के पास गई जो थोड़ी सी दूर था. Days passed and the baby birds became a big bird. Day pass करते गए और जो baby bird थी वो big bird बन गई. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन जो king था country का वो आया और hunt करने forest में. He saw a deer and rode after it. और उन्होंने deer देखा और उसके पीछे रोड करा. It ran deep into the forest followed by the king. वो अंदर बहुत अंदर चला गया forest पे, king उसको follow करते हुए. Soon the king lost his way and did not know where he was. King ने अपना way lost कर दिया, उनको नहीं पता कि वो कहाँ है. He rode on for a long time till he came to other side of the forest. वो थोड़े और long time तक road करते हैं, वो दूसरे side में आ गए forest के. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree. वो बहुत ज़्यादा टायर हो गए और एक ट्री के नीचे बैठ गए. That stood near a cave, जो एक केव के पास था. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up!" उन्होंने एकदम एक आवाज आई, "Quick, hurry up! There is someone under the tree." कोई है ट्री के नीचे. Come and take his jewels and his horse. चलो उसका सारी ज्वेलरी और उसका हॉर्स ले लेते हैं. Hurry or else he will slip away. जल्दी करो नहीं तो वो चली जाएगा यहाँ से. The king was amazed. King को एकदम शॉक हुआ. He looked up and saw a big brown bird on the tree. उन्होंने ऊपर देखा, एक big brown bird दिखी उन्हें ट्री पे. Under the tree which he was sitting. उस ट्री के ऊपर देखी big brown bird. He also heard faint noises issuing from the cave. उसे एक faint noises आई जो कहाँ से आ रही थी, cave से आ रही थी. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. फिर वो कहाँ चला गया, किंग अपने हॉर्स पे चला गया और उतना फास्ट रोड करता रहा जितना वो कर सकते थे. Soon he came to a clearing which he like an ashram. तो वो कहाँ पे आ गए, clearing which like an ashram, एक आश्रम में आ गए. It was the Rishi's ashram. वो क्या था, ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. king ने क्या करा, अपना tie कर दिया horse और उसकी shade में बैठ गए. Suddenly he heard a gentle voice, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest." उन्हें एक gentle voice आई कि एक gentle सी voice आई, "Welcome to the ashram, sir. और अंदर जाओ rest करो. The rishi will be back soon." ऋषि जल्दी आ जाएंगे वापस. There is some cold water in the pot. कुछ ठंडा पानी है पॉट में. Please make yourself comfortable. अपने आप को comfortable कर लो. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. King ने ऊपर देखा और उन्हें big brown bird दिखी कि ट्री पे. He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave. और ये बिल्कुल इसी तरह रखी थी जो केव के बाहर थी bird. He said to himself aloud, "You are right, sir," answered the bird. उसने बोला, "Yes, you are right, sir." और bird ने आंसर करते हुए बोला, "He is my brother, but he has made friends with robbers." वो मेरा ब्रदर है और उसने अपने फ्रेंड्स बना लिए robbers. He now talk as they do. और वो ऐसी बात करते हैं जैसे वो करते हैं.
ही डज नॉट टॉक टू मी एंड एनीमोर, वो मुझसे बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, उसी टाइम ऋषि ने एंटर करा आश्रम में। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, ऋषि ने बोला वेलकम सर, प्लीज केम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, अब अंदर आओ और अपने होम की तरह फील करो। यू लुक टायर्ड, तुम टायर्ड लग रहे हो, रेस्ट फॉर वाइल, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर तुम मेरा फूड शेयर करना। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ each had behaved so differently, though the thought looks so alike। तो किंग ने स्टोरी बताई ऋषि को कि दोनों सेम लगती है बट दोनों अलग अलग बिहेव करती है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड, उन्होंने बोला ये जो फॉरेस्ट है ये तो फुल ऑफ सरप्राइजेस है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो होली मैन था ऋषि, उन्होंने स्माइल करा और बोला आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय कंपनी वन कीप्स, उसको हम उसी की कंपनी के हिसाब से जाना जाता है जिसके साथ वो रहते हैं, मतलब संगति का असर दिख जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस बर्ड ने हमेशा टॉक किसकी सुनी है, बर्ड रॉबर्स की। ही मेड्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, वो उन्हीं की तरह बात करती है और उसी की तरह ट्राई करती है रॉब करने का पीपल को। दिस वन हैव रिपीटेड व्हाट ही वाज ऑलवेज हर्ड, वो वही रिपीट करती है जो वो हमेशा सुनती है। ही ऑलवेज, जो ये वो मेरी बर्ड है, ये हमेशा वो बोलती है जो ये हमेशा सुनती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो क्या करती है, वेलकम करती है पीपल्स को आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, अब आप अंदर आइए, मैं इस प्लेस के बारे में बताऊंगा, इन बर्ड्स के बारे में बताऊंगा। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.